اچھا، اس پوڈ کاسٹ کے بعد آپ کو کتنی دھمکیاں ہیں؟ تالا ریویو لوگوں کو ایکسپوز کرنے والا خود ایکسپوز ہو گیا۔ ڈکی کو 20 لاکھ روپے اس سے لیے گئے، ڈکی کی گاڑی 4 ماہ استعمال ہوئی ان کے پاس، ڈکی کی مسز اروب کی گاڑی بھی تلا نے استعمال کی، پھر بلیک میل کر کے پوڈ کاسٹ کیا۔ پہلے خود ہی ان کو ایڈوائز کی، جب انہوں نے کورس لانچ کیا لفٹ نہ کی، انہوں نے تلا ریویو کی بجائے رجب کو ساتھ ملایا، جس کی وجہ سے پھر تلا ریویو نے ایکسپوز کی کہانی کھیل کے وہ ساری چیز خراب کر دی۔ جو اس نے کال کر کے ڈکی سے پیسے مانگے، ڈکی کی وائس ہے نا بیچ میں، یہ بولے گا اے آئی ہے تو ڈکی نہیں بولے گا کہ یار یہ تو اے آئی نہیں ہے، تو پروف اب تو والی کہانی ہی نہیں ہے نا۔ اچھا مجھے نا ایک چیز سمجھا دیں کہ جہاں پر ڈکی کہہ رہا ہے کہ میں خانہ کعبہ میں جا کر یہ کروں گا، مطلب معافیا مانگ رہا ہے، یہ کیا تھا؟ دیکھیں اس نے تب بولی تھی یہ بات جب تلا نے بولا تھا میں تمہیں رگڑوں گا، یہ وہ ٹائم ہے جب ڈکی کے فالوورز گر رہے تھے، جب تلا نے ایکسپوز کیا تھا۔ تلا نے یہ بات بولی کہ ندیم نانی والا نے جو پولیس بھیجی ہے، جو پولیس نے ٹارچر کی ہے میرے اگینسٹ، جو کچھ بھی ہوا ہے ڈکی بھی اس میں شامل ہے، تو ڈکی نے اس ٹائم پہ قسمیں کھائی کہ مجھے ان چیز کا نہیں پتہ اور نہ ہی میں ان چیزوں میں شامل ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام شعیب صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ پاکستان تلا ریویو لوگوں کو ایکسپوز کرنے والا خود ایکسپوز ہو گیا۔ جناب عثمان زیب صاحب کا آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھا ہوگا، اس میں ان کے کوئی بھائی بنے ہوئے تھے، ان بھائی نے سارا کچا چٹا جو ہے وہ کھول کے رکھ دیا۔ عثمان صاحب مارکیٹ میں تو وویلا مچ گیا ہے۔ دیکھیں مارکیٹ میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ایسی ویڈیوز ان کی چل رہی ہیں جو کہ ان کی ذاتی زندگی کے اوپر ہیں، تو میرا خیال ہے کہ کسی کی ذاتیات پہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے پاس بھی وہ ویڈیوز پڑی تھی لیکن میں نے وہ ویڈیوز نہیں چلائیں، میں نے ہلکا سا کلپ چلایا، اس میں بھی لڑکی کا چہرہ بلر کر دیا، لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ مارکیٹ کے اندر کسی لڑکی کے ساتھ ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، اور یہ وہی لڑکی ہے کہ پہلے ان کی ویڈیوز اس کے ساتھ آؤٹ ہوئی تھیں، مطلب تلا کے موبائل سے کسی نے لے لی تھی، پھر تلا نے ان کے ساتھ نکاح بھی کر لیا، بعد میں چھوڑ بھی دیا، اس قسم کا کوئی معاملہ ہے، لیکن ان کی ذاتی زندگی ہے، اس پہ ہم لوگ بات نہیں کریں گے۔ باقی جو تھے ان کے ساتھی، جس طرح بلیک میل کیا گیا، ڈکی کو 20 لاکھ روپے اس سے لیے گئے، ڈکی کی گاڑی 4 ماہ استعمال ہوئی ان کے پاس، ڈکی کی مسز اروب کی گاڑی بھی تلا نے استعمال کی، پھر بلیک میل کر کے پوڈ کاسٹ کیا، پھر وہ ویڈیو آڈیو آؤٹ ہونا جس میں ندیم نانی والے کے ساتھ مل کے اور اس نے ڈکی کے ساتھ مل کے ایک میٹنگ کرتے ہیں سٹارٹ میں، اور ان کو آئیڈیا دیتا ہے جی ایسے پیسے کماؤ، ایسے کورس لانچ کرو، اس میں حالانکہ ڈکی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، جی میرا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، کسی کو گمراہ کرنا نہیں ہے، تو وہ آڈیو بھی آؤٹ ہوئی، وہ آڈیو بھی ہم نے چلائی، مطلب پہلے خود ہی ان کو ایڈوائز کی، جب انہوں نے کورس لانچ کیا لفٹ نہ کی، انہوں نے تلا ریویو کی بجائے رجب کو ساتھ ملایا، جس کی وجہ سے پھر تلا ریویو نے ایکسپوز کی کہانی کھیل کے وہ ساری چیز خراب کر دی۔ اچھا ایک چیز مجھے سمجھائیں کہ اس عمر میں اتنی کچھ زیادہ عمر نہیں تھی، اس عمر میں اس بندے کے جو ڈریم تھے وہ سمجھ لیں بہت بڑے تھے، اور جس طریقے سے وہ ہم نے ایک وائس سنی اس میں جو ہے وہ کیلکولیشن جو ہے وہ کر رہا ہے کہ وہ تو کروڑوں روپے اربوں روپے کی گیم ہے۔ دیکھیں پیسہ کس کو برا نہیں لگتا، ہم بھی آتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، اب شارٹ ٹائم پیسہ مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، لیکن شارٹ ٹائم پیسہ عوام کو بیوقوف بنانے سے مل رہا ہے، تو جو عوام کو بیوقوف بنایا گیا، پھر پیسہ وہاں سے کلیکٹ کیا گیا، پھر شانہ ایک لائف سٹائل، لیکن بات یہ ہے کہ تلا نے وہ سارا پیسہ کہاں پہ اڑایا؟ یہ بھی شیخو پورہ میں رہ کے اتنا پیسہ تو نہیں اڑ سکتا نا کہ آپ کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے، آپ لوگوں سے کروڑ روپے آپ لے چکے ہو، ابھی بھی کوئی 200 بندہ ہے بقول کچھ لوگوں کے لسٹ تیار ہو چکی ہے، جس نے تلا نے کسی سے 10 کسی سے 15 کسی سے 25 لاکھ روپے لیے، تو یہ سارا پیسہ گیا کہاں پہ؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ تو جب آپ لڑکیوں کے چکر میں پڑو گے تو جتنا پیسہ بھی ہونا کم ہو جاتا ہے۔ کیا بات کیا آپ نے، اس بات کا کسی کو بھی نہیں پتا، جب بھی آپ لڑکیوں کے چکر میں پڑ گئے نا سر، پھر آپ کو پیسے کی بھی ضرورت پڑے گی، بڑی بڑی گاڑیوں کی ضرورت پڑے گی، دکھاوے کی ضرورت پڑے گی۔ مجھے یہ بات بولیں ہمیں کیوں ضرورت نہیں پڑتی؟ ہمیں کیوں گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیوں شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کیوں ان چیزوں میں نہیں پڑے؟ ہم تو ویڈیو بھی بہت سوچ سمجھ کے بناتے ہیں کہ بندہ ہمارے خلاف کوئی بات نہ کر لے، ریپوٹیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، پیسے لینا تو دور کی بات، ہم کیوں لوگوں کو بڑے بڑے خواب نہیں دکھاتے، ہم کیوں لوگوں کو جانسا نہیں دیتے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ صرف اور صرف ریپوٹیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو تلا صاحب نے کیا کیا، پیسے بھی لوگوں سے لے لیے، اپنی دوستی یاری بھی خراب کر دی، 2 سال کا انہوں نے سارا بتا دیے کہ کیسے غریب گھر سے تلا اٹھتا ہے اور کیسے یہ پیسہ بناتا ہے، اس کے بعد ہر اس کمپنی کو ایکسپوز کرتا ہے جو اس کو پیسے نہیں دیتی۔
अच्छा, सुनने में आया कि वीवो, ओप्पो, ये सारे जो है ना इसके सामने जो है इनको ब्लैकमेल होता रहा बेचारे। बिल्कुल ऐसे ही जो नया मॉडल आता था कहता था मुझे पैसे दोगे, ठीक है, नहीं पैसे दोगे तो मैं एक्सपोज करूंगा। एक मोबाइल ही खरीदना था, एक्सपोज करना था। तो ये सारी चीजें उनके माइंड के साथ चलती रही हैं। अच्छा, एक बात कहाँ पे गलत हुई? देखें, आप दूसरों को एक्सपोज कर रहे हो, आप खुद नहीं ठीक, तो एक दिन आपने भी एक्सपोज होना है। वक्त जो है वो बड़ा जालिम है सर, वक्त बहुत जालिम है। वक्त ऐसे इंसान को सिखा देता है ना कि बड़ी बड़ी चीज़ें वक्त में सामने आ जाती हैं। आज देखें ना, जो इज्जत बनाई थी, जो एफर्ट की थी, जो कुछ सामने था दुनिया के, ख़त्म हो गया सब कुछ। आज वीडियोस चल रही है, अभी मैं देख रहा हूँ फनी मीम्स आने लग गई हैं टिकटॉक के ऊपर। यार। मुझे एक चीज बताएं कि अभी कोई जवाब नहीं आया, कोई इस तरह का कोई सर जवाब बातचीत नहीं जवाब है की कहाँ पे? देखें, जवाब की बात ये है कि कुछ लोगों के पैसों के मामलात हैं, उस तरह सामने फ्रंट पे हैं भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि क्या जवाब देंगे इस बात का। अब तो वीडियोस पड़ी है ना, ऑडियो पड़ी है, प्रूफ है, डक्की प्रूफ है, नदीम नानी वाला प्रूफ है, रजब प्रूफ है, सारे लोग मैदान में। अब तो छुपने वाली बात ही नहीं है। जो डक्की के साथ मीटिंग हुई, वाइस क्या बोलेगा जी ये एआई थी, तो डक्की बोलेगा नहीं जी एआई नहीं थी, नदीम नानी वाला गवाह है। जो उसने कॉल करके डक्की से पैसे मांगे, डक्की की वॉइस है ना बीच में, ये बोलेगा एआई है, तो डक्की नहीं बोलेगा कि यार ये तो एआई नहीं है। तो प्रूफ अब अच्छा, तो वाली कहानी ही नहीं है ना। अच्छा, मुझे ना एक चीज समझा दे कि जहां पर डकी कह रहा है कि मैं खाने काबा में जाकर ये करूंगा, मतलब माफिया मांग रहा है, ये क्या था? देखें, उसने तब बोली थी ये बात जब तला ने बोला था मैं तुम्हें रगड़ूंगा। ये वो टाइम है जब डकी के फॉलोअर्स गिर रहे थे, जब तला ने एक्सपोज किया था। तला ने ये बात बोली कि नदीम नानी वाला ने जो पुलिस भेजी है, जो पुलिस ने टॉर्चर किया है मेरे अगेंस्ट, जो कुछ भी हुआ है, डकी भी इसमें शामिल है। तो डकी ने उस टाइम पे कसमें खाई कि मुझे इन चीज़ का नहीं पता और ना ही मैं इन चीज़ों में शामिल हूँ। तो वो उस टाइम की बात है। अच्छा, हमने एक वॉइस जो वो सुनी थी, उस वॉइस के अंदर जो डकी भाई हैं वो बार बार कह रहे हैं कि भाई मैं जो है इन कामों में नहीं आना चाहता, मुझे सिर्फ ट्रेडिंग का पता है, मैं ट्रेडिंग के बारे में बता सकता हूँ, लाइव अपना अकाउंट शो कर सकता हूँ, बाइनांस का अकाउंट शो करता हूँ, बाइनांस का शो करा सकता हूँ। यहाँ पर जो है वो तला रिव्यू कह रहे हैं कि जी ये 10 वेबसाइट्स हैं और ये देख लें, इसके पास जेट है, इसके पास ये गाड़ियाँ हैं और इसके पास ये हेलीकॉप्टर्स हैं। ये सब जो है वो कोर्स बेच बेच के ये आगे आए हैं। प्लान क्या था? तला का प्लान ये था कि कोर्स बनाऊंगा, मैं भी साथ पार्टनर हूँगा, मैं भी पैसे कमाऊंगा, मुझे भी अच्छा शेयर मिलेगा और लोगों को हम लोग बेवकूफ़ बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, उस टाइम पे सीन ये था कि डक्की जो था वो उस टाइम पे ट्रेडिंग और ये चीज़ें करता था, उसको आइडिया था। नदीम नानी वाला था वो उस टाइम पे शॉपिफाई कर रहा था, रजब जो था वो यूट्यूब कर रहा था। अब सीन ये थी जब इनकी आपस में मीटिंग हुई है तो उस टाइम पे तला रिव्यू का माइंड में यही था कि भाई ये मुझे अपने साथ मिलाएंगे, लेकिन नदीम नानी वाला डक्की उसको साथ क्यों मिलाएं, उसकी तो व्यूअरशिप ही नहीं थी। उन्होंने साथ मिलाया रजब को, चूंकि रजब की अच्छी व्यूअरशिप थी, फिर उसकी शादी होगी। बात यह सारी कि जब उन लोगों ने इसको साथ नहीं मिलाया, इसका मकसद पैसा कमाना था, तो इसने उनके खिलाफ वीडियोस बना दी। अच्छा, एक चुभता हुआ सवाल है आपसे कि जो भाई यहाँ पर पॉडकास्ट देकर गए हैं आपको, उन्होंने आपको पॉडकास्ट क्यों दिया? मुझे पॉडकास्ट क्यों दिया? तो अच्छी बात है, उन्होंने मुझे दिया ना, क्योंकि पूरे ये पाकिस्तान में चीज़ें देख पूरे कोई और बंदा पाकिस्तान नहीं नहीं, कोई और बंदा भी अपने चैनल पे ऐसी चीज़ कभी नहीं लगाएगा। इसके लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है। फिर उसके बाद जो भी चैनल्स पे काम करते हैं उनको परमिशन चाहिए होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना चैनल है तो मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो वो काफ़ी टाइम से मेरे राब्ते में थे, फिर मैंने उनको कन्विंस किया कि आओ यार खुल के बात करो, जो गलतियाँ आपसे हुई हैं, जो गलतियाँ हो चुकी हैं उसको ख़त्म करो और आगे पॉडकास्ट हो ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि तला का कोर्स अभी भी चल रहा है $49-50 का, ताकि मज़ीद लोग तो बेवकूफ़ ना बने ना। तो मकसद सिर्फ और सिर्फ अच्छा, ये था। अब 200 बंदों की जो लिस्ट तैयार हो चुकी है जिनके साथ इनके एग्रीमेंट्स लगे हुए हैं, वो जिन लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन बेचे, जिन लोगों ने अपने मोटरसाइकिल बेचे, जिन लोगों ने अपने घर के जेवरात बेचे, जी बिल्कुल ऐसे और ही है। कुछ लोग ऐसे थे जो दुबई से लेबर का वीज़ा छोड़कर यहाँ पर आए कोर्स करने के बहाने और उन्होंने पैसे दिए, ऐसे ही है। तो उनका क्या कसूर है? देखें, बात ये सारी कोर्स का पैसा किसने दिया? कुछ लोगों ने सीखने का दिया, पर यहाँ पे सीखने वाली कहानी नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट करें। मैं कुछ वीडियो देख रहा था, लोगों ने पैसा दिया, इसने किसी को बोला कि भाईजान फलां माल है, सस्ता मिल रहा है, पोर्ट पे फंसा हुआ है। किसी को बोला जी आप पैसे दो, ये माल मंगा के हम लोग बेचेंगे, इतना परसेंट आपका, इतना परसेंट मेरा। बाद में उनको बोल दिया कि भाई वो पैसे, वो आपका माल तो पोर्ट पे फंस चुका है। तो ये सारी कहानी की थी कि पैसा इसने लिया माल लेने के लिए। किसी को बोला यार इतना पैसा भेज दे, यहाँ से मोबाइल सस्ते मिल रहे हैं, किसी को क्या बोला, किसी को क्या बोला। तो कोर्स सिखाने वाला सीन उसमें कोई नहीं था। उसमें लोगों को ये था कि मंगाऊंगा माल मैं खुद ही, बेचूंगा मैं खुद ही, तो प्रॉफिट है जो 50-50 होगा। यार ये ऐसा दिमाग कहाँ से आया? देखें, ये बहुत हैवी दिमाग है। मसला ये होता है कि जब चीज़ गुजर जाती है हमें तब पता चलता है। बहुत सारे लोग गिला कर रहे हैं कि उस टाइम पे आपने पहले क्यों नहीं बताया। हमें तो ये फार्मूला समझते समझते ही काफ़ी टाइम लग गया और जब हमारे पास चीज़ें आई तो हम तो इसको मान ही नहीं रहे थे। तो बाद में जाके समझ आया कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि
सोशल मीडिया की जो लाइफ है, सब कुछ दिखाया जाना, बड़ी गाड़ियां, घर, प्रोटोकॉल, ये तो सारा उलट ही निकल गया। बिल्कुल ऐसी है, टोटली डिफरेंट है जी। सोशल मीडिया की लाइफ टोटली डिफरेंट है। समहाउ उस लाइफ के अंदर ना पॉजिटिव या नेगेटिव आपने चीज़ों को क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे तला का मकसद था जी पैसा कमाया जाए, शाहाना लाइफस्टाइल किया जाए, और जो पैसा वो कमा चुका था अगर वो लड़कीबाजी में ना पड़ता तो शायद उसके पास वो बच जाता। जो पैसा 42 लाख रुपया वो वीडियोज़ जो इसने इनको कोर्स को एक्सपोज करने के लिए बनाई थी, 42 लाख रुपया वो था, कहाँ से आया वो यूट्यूब से आया था। यूट्यूब से? हाँ, फिर प्रमोशंस अलहदा मिली थी, तो वो पैसा भी तो था उसके पास, लेकिन वो वहाँ पे रुका नहीं। वो आया, इन्होंने लाहौर में ऑफिस बनाया, फिर लोगों से इन्वेस्टमेंट पकड़ी उसके बहाने। कहने का मकसद ये कि अगर लड़की बाजी ना करता तो तला कभी ख़राब ना होता। जो उसने कर लिया था उसके लिए बहुत था। गरीब घर का लड़का था ना, 1.5-2 करोड़ रुपये जो उसने कमा लिया, बट ठीक था। लेकिन उसने बोला नहीं जी, याशी मारनी है, बड़े बड़े होटल्स में जाना है, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी रखनी है, तो ये सारी चीज़ें की जिसकी वजह से आज फंस गया। एक बंदा मशवरा दे रहा है और फिर उसी को हटाया जा रहा है। 33%, 33%, 33%, यही गुस्सा था, उसने सबको एक्सपोज कर दिया। और हमने देखा कि वहां पर जो है वो कुछ बड़े लोग जो है बीच में पड़ गए थे और वो तला रिव्यू को सेव करने की कोशिश कर रहे थे, और वहां पर इसका बाप अगवा हो गया, बड़े बड़े इस तरह के मसले मसाइल सामने आए थे। लेकिन ये सारी की सारी एक हाइप क्रिएट की गई सोशल मीडिया के ऊपर ताकि जो है वो सिंपैथी गेन की जाए। हालांकि ऐसा मुझे नहीं लगता कि उसका बाप अगवा हुआ या नहीं हुआ, सो वट एवर जो भी बात है। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे रजब भट्ट ने आकर जवाब दिया या नदीम नानी वाले ने आकर जवाब दिया, एक बात उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की कि भाई हम उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन उस्मान साहब, वक्त कितना जालिम है कि जो जिस बंदे की नीयत साफ नहीं होती या जो अंदर से मैला होता है वो वक्त के साथ साथ सामने आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तो आप इस जवाबात को कैसे जानते हैं? यार बात ये है ना सारी ना, उस टाइम उसने क्या किया, तला रिव्यू ने नदीम नानी वाला, डक्की और रजब उसकी रेपुटेशन डैमेज की। लोगों को बोला जी कोर्स 2 नंबर है, फलाना है, लोगों को ख़राब किया, ठीक हो गया। उस टाइम पे उनकी रेपुटेशन डैमेज होगी, इसने तो फ़ायदा उठा लिया, सिंपैथी भी ले ली, सब कुछ कर लिया। अब सीन ये हुआ, आप 2 साल बाद जाके रजब लोगों को ये मौका मिले लोगों को बताने के लिए कि हम आपको कुछ सिखाना चाह रहे थे। तो जब हम आपको कुछ सिखाना चाह रहे थे, इस बंदे ने इतनी नेगेटिविटी फैला दी कि उनको वो कोर्स ही ड्रॉप करना पड़ा। तो ये सारा इम्पैक्ट पड़ा था उस टाइम पे, सारा तला रिव्यू ने किया था। वो कुछ सिखाना चाह रहे थे या वहीं नहीं, देखें बात ये है, अगर मैं रजब की बात करूं तो रजब खाली बैठ के ना टिप्स ही दे दे यूट्यूब के ऊपर कि आपने ये करना है वो करना है, लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे, ठीक है। जिस तरह वो अक्सर देता है, मैं कुछ नया लेके आना है, ये वो करना है, ठीक है। डकी बाइनांस, मुझे बताएं, डकी गिरफ्तार हुआ था, उसके बाइनांस वॉलेट से कितने अमाउंट थी जो ट्रांसफर हुई थी? 26,000 USD। बिल्कुल, तो देख लें, तो इसका मतलब है काम तो वो कर रहा है। तो जो बंदा इतनी अमाउंट रख के बैठा है उसको काम तो आता है। अगर वो बाइनांस का लोगों को कुछ भी सिखा देता, 10% लोगों का फायदा था कि नहीं था? नदीम नानी वाला ने शॉपिफाई से कितना पैसा कमाया, 10% ही सिखा देता, लोग अपने रास्ते पे चल पड़ते। बेस ही सीखनी होती है, बाद में बंदा प्रैक्टिस के साथ सीख जाता है। तो कुछ ना कुछ लोग 5,000 रुपये में सीख जाते। 5,000 ही थे ना, कड़ा कोई 50,000 था। तो उस सीखने से भी लोग रह गए, चीज़ें भी आउट हो गई, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई थी, तो जिसका रिजल्ट अभी आपके सामने। बिल्कुल इतना पैसा तो नहीं है, अगर आप देख लें तो बड़े असल में ना PR करनी पड़ती है, फिर साथ कोई चीज़ आप सेल कर लेते हो, इसी तरह की मुख्तलिफ चीज़ें करते हो तब जाके पैसा बनता है। बाकी व्यूज़ से इन चीज़ों से इतना पैसा नहीं बनता। अच्छा, इस पॉडकास्ट के बाद आपको कितनी धमकियाँ आई? नहीं, मुझे तो खैर ऐसी कोई ख़ास धमकी नहीं आई, क्योंकि तला रिव्यू ने धमकी दे सकता है। उसकी रीज़न ये कि खुद मार्केट से आउट है, वो खुद छुपा हुआ है, लोग उसको ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ से हमें क्या धमकियाँ देनी है? कोई धमकी शमकी नहीं है। पॉडकास्ट था, बंदे बैठे, उन्होंने अपनी बात की, हमने तो कोई ऐसे काम किए नहीं है। हमने तो जो उनकी बातें थी सेम इट इज़ चला दी, अपनी तो कोई बात ही नहीं की हमने। दूसरी बात ये कि लोगों के पैसे क्लियर करें, बस, और क्या है, उसने हमें क्या कहना है। उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े ज़बरदस्त बातें की, और यकीनन वक्त जो है वो बड़ा जालिम है, और जो बंदा नीयत का खोटा है वो बेशक खाना काबा के सामने भी बैठ के जो मर्दी दुआएं करता रहे कबूल नहीं होंगी। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।